अच्छा कैमरे तुमने 3 नहीं करने हो ना, मैं तो अपनी एंट्री कर लूँ ना फिर। Yes, yesterday we started with value added method. Value added method means the steps involved in this method is if you want to go by theory. अगर we straight away jump to the numerical portion, so it starts from here. But this is a if it comes question अगर ऐसे आ जाता है explain the methodology of estimating national income through product method, तो आपको तो methodology लिखनी है ना. You have to write the procedure और फिर उसके बाद precautions. तो यही portion it may come in theoretical part also or it might come in numerical also. So we'll come to the numerical also, but first step involved in the methodology or procedure is identification and classification of producing enterprises. And interesting thing is it is same in income method also. It is the same step in the first step. In second step, it comes to the numerical portion what we are talking about. Estimation of value of output and value added. This is the second step. The first, value of output. Value of output can be calculated in two ways. Yesterday I also told you this is a quantity produced. If it is given quantity produced multiplied by market price, you straight away get your value of output. But like the question Armani gave, it was quantity sold. So when you multiply the quantity sold by price, you get the sales. So that is our second method. So according to the second method, value of output is equal to sales plus change in stocks. And change in stock is estimated क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जब हमारा ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया तब हम करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि वो एक्सपेंडिचर जो बनाने के दौरान खर्चा किया उसको निकालने पर हम वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और वी मे कॉल इट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फिर जैसे अभी अरमानी बोल रही थी कि हमने वो माइनस क्यों किया, वो इसलिए माइनस किया क्योंकि वी वर सपोज टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड व्हाट द वैल्यू वी हैव गॉट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड राइट हैंड साइड शोज व्हाट वी हैव गॉट. और व्हाट वी हैव गॉट हम उसी में फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करके ही तो उसको इक्वेट करेंगे. तो लुक यहाँ पे ग्रॉस और नेट में डिफरेंस आ रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन ही होता है डिफरेंस ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में. ठीक है. और इधर वैल्यू हमारे पास मार्केट प्राइस पे है, और मैंने बताया था आपको कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले से इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हमें चाहिए था फैक्टर कॉस्ट पे आंसर, तो हमने मार्केट प्राइस में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिए. यही मैकेनिज्म था ना. और अगर हमें निकालना था नेशनल इनकम, तो फिर हम उसी डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर देते हैं, तो वो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाती है. विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आई टोल्ड यू 2-3 days अर्लियर कि डोमेस्टिक इज अ घरेलू concept, whereas national means राष्ट्रीय, that is a bigger concept, and that involves the factor income which we earn from abroad also. And NFIA is a differential between income received and income paid. उसका फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको मैंने NFIA का. ओके. फिर हमने इसके खैर क्वेश्चंस भी किए थे. सो टुडे इट इज ए इनकम मेथड. इनकम मेथड में the first step involved in income method is the same which was there in value added method, that is identification, and classification of producers या producing units या producing enterprises, कुछ भी लिख लो आप, producers भी लिखोगे. So this will become your first step. Under this step, the economy is divided into primary, secondary and tertiary sector for making the calculation easy. और यही इसकी explanation लिखनी है आपने इस step में. फिर second step है
classification of factor incomes. अब फैक्टर इनकम्स को तो आपको बताया था मोटा माटी कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा इसको डिटेल में जाएंगे। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फैक्टर इनकम्स को। द वन टाइप ऑफ इनकम which is earned by working is known as compensation of employees और COE शॉर्ट फॉर्म में लिख दें अगर हम। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, दैट इज अ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड दिस, सब इंक्लूड, इसके फर्दर पार्ट्स भी हैं, जैसे इसके अंदर पार्ट आ जाएगा वेजेस, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, चाहे वो फिर प्रोविडेंट फंड में हो या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हो। अच्छा, ग्रेचुटी वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये इसके कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज, दोज हु वर्क आर बीइंग कॉम्पनसेटेड, सो इट इज अ इनकम विच इज अर्नड थ्रू वर्क। एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो ना, जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो अपने काम के लिए कॉम्पनसेट होते हैं सैलरी के रूप में। तो सैलरी कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, वस्तु के रूप में भी हो सकती है। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला और एम्प्लॉय होता है काम करने वाला। तो एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे प्रोविडेंट फंड में वो एम्प्लॉयर कोई आपका योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी कॉम्पनसेशन का पार्ट है। फिर एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जैसे पेंशनेबल जॉब है, पेंशन मिलेगा, सोशली वो सिक्योर रहेगा, बोनस मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है, इस तरह की चीजें, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आ गई पहली तरह की फैक्टर इनकम। इसमें क्या नहीं आएगा, जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, या मान लो एक इंजर्ड वर्कर है, एक मतलब एक फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा था और उसकी बाजू कट गई, और बाजू कट गई और उसके बदले उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, क्या वो कॉम्पनसेशन है? नहीं, वो तो इंश्योरेंस मिल रहा है उसको, और उल्टा उसके लिए उसको अपनी बाजू गंवानी पड़ी, वो तो किसी भी लिहाज से कॉम्पनसेशन नहीं है। कॉम्पनसेशन वेयर योर वर्क इज बीइंग कॉम्पनसेटेड। ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, परफॉर्मिंग जॉब, इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा थिंग विच एम्प्लॉयर गिव्स यू। सो ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं आ सकता उसमें। तो इसलिए इसमें ये आते हैं मेन जो आते हैं कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, मीन्स दोज इंग्रेडिएंट्स विच आर पार्ट और विच आर अवॉर्डेड या गिवन टू अ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज वर्क। ये आगे पहली तरह की इनकम अंडरलाइन कर देता हूं, विच इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड तरह की इनकम है विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, operating surplus, and it is an income which is earned through property or business activities such as entrepreneurship. Operating surplus is a second type of factor income which is earned through property
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके भी सब पार्ट्स हैं। दिस इंक्लूड्स नंबर 1 रेंट, नंबर 2 रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग सरप्लस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट की फर्दर 3 डिविजन्स हैं, उसको मैं ABC करके लिख देता हूं। इसके आ गई ए कॉर्पोरेट टैक्स, बी डिविडेंड, सी कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो प्रॉफिट के देयर आर फर्दर डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या गेन्स टैक्स। सेकंड इज डिविडेंड एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट सेविंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट सेविंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये आ गया दूसरी तरह की इनकम। मैं इसी पेज को यूज कर लेता हूं क्योंकि थर्ड वाली कैटेगरी ना, उसके आगे टाइप्स नहीं है, दैट इज अ सिंपल कैटेगरी। देखो हम कर रहे थे ना सेकंड स्टेज एस्टिमेट क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो ये एक तरह की फैक्टर आ गई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरी तरह की फैक्टर इनकम आ गई ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड तरह की इनकम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड्स। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड्स, ये आपकी तीसरी तरह की इनकम है, ये जो बॉक्स के अंदर लिखी है। ये आ गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। 3 तरह की फैक्टर इनकम्स आ गई आपकी। अब एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, थर्ड स्टेप estimation of domestic income, which is NDP at factor cost. So NDP at factor cost is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. लो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप। Estimation of domestic income, and domestic income is also known as NDPFC. और NDPFC या डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, तीनों तरह की इनकम को जोड़ दो। जब होती 3 तरह की हैं तो तीनों टाइप्स की इनकम को ऐड कर दो, यू विल गेट द डोमेस्टिक इनकम NDPFC। फिर नेशनल इनकम निकालनी हो, इसी के साथ लगा लो एस्टिमेशन ऑफ national income, which is NNP at factor cost. Factor cost is equal to NDP at factor cost plus net factor income from abroad. Look,
इसको अंडरलाइन कर लो, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहले डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमने तीनों तरह की फैक्टर इनकम्स को जोड़ दिया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और बाद में डोमेस्टिक वाले कंसेप्ट को नेशनल वाले कंसेप्ट में जोड़ने के लिए हमने एनएफआई उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी प्रिकॉशंस कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। पहला तो यही है कि ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेनी है। देखो ना, फॉर्मूले में हम लिख रहे हैं फैक्टर इनकम्स ले रहे हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब ले रहे हैं हम। फैक्टर इनकम मतलब पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हम वो सब तो लेते ही नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होती है, तो ट्रांसफर इनकम्स विल बी नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। फिर इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड गुड्स, कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि सेकंड हैंड स्कूटर वाला एग्जांपल। मान लो अरमानी ने मेरे को बेचा था सेकंड हैंड स्कूटर, तो उसको बेचने पर जो इनकम हुई वो इनकम इस साल की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो स्कूटर जिस साल बना था वो उसी साल की नेशनल इनकम में एक बार ऐड हो चुका। तो अभी जो स्कूटर बेचने पर जो इसको उसको पैसे मिल रहे हैं वो उसकी इनकम में नहीं ऐड होंगे, और जो मैं खर्चा कर रहा हूं मेरे एक्सपेंडिचर में नहीं ऐड होंगे, और मतलब नेशनल इनकम में नहीं ऐड होंगे। तो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई वो नहीं ऐड होगा। फिर लॉटरी में पैसा निकल गया, इनकम फ्रॉम लॉटरीज या फिर विंडफॉल गेन्स, अचानक कोई खजाना मिल जाना, वो इनकम मेथड में कहीं नहीं लिया जाता उसको, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं होती हैं। फिर शेयर्स एंड बॉन्ड्स, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, मैंने अबे को बेच दिए, तो मेरे को जो इनकम हुई वो इनकम मेथड में ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हुई। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये भी एक प्रिकॉशन ले ली हमने। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ताकि आप एक अदा करो तो सही। लिखो, सिंपल है, छोटा और डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी निकलेगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन लिखो। रेंट 1400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 1500, wages and salaries 800, profit 500, mixed income 1000, depreciation 70, depreciation 70, and employers contribution to social security schemes, employers contribution to social security schemes 200। निकालो जरा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। अरे इतनी देर, 5530।
कोई एक चीज मिस कर दी शायद अरमानी। हाँ, 5600 ठीक है। 5600 हाँ ये ठीक है, कोई चीज मिस कर दी सर। तूने। आपने डोमेस्टिक बोला सर, आपने सिर्फ डोमेस्टिक बोला था। हाँ तो डोमेस्टिक की वैल्यू बता रहा हूँ। ओके हाँ सर, वो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था इसलिए। डेप्रिसिएशन नहीं नहीं, डोमेस्टिक में क्यों, ये तो नेट पे आ रही है वैल्यू, डेप्रिसिएशन को तो लेना ही नहीं था, वो तो ऐसे फालतू का दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए। और बाकी वाले क्या सत्संग में आए हुए हैं, कोई बोलता ही नहीं है। मतलब हाँ अमन क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। बाकी कितने दिल, कृतिका, हरांश, शुभम ये बोलते ही नहीं है कोई, वृंदा, गोविंद, प्रणव, चुप ही रहते हैं ये, कितने ही हैं यार। नेहा ये चुप ही रहते हैं। अच्छा मेरी शर्म करते होंगे ना बेचारे, है नहीं, मेरे से शर्माते होंगे। मैं भी शर्मा जाऊं ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे पढ़ाऊं, सर कितना मजा आएगा नहीं, नजारे। मैं भी वीडियो ऑफ कर देता हूँ फिर, और क्या है, बटन ही तो दबाना है, इसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। दो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप यार यूनिफॉर्म में अगर नहीं भी हो गए तो यूनिफॉर्म थोड़ी ना उतनी इंपॉर्टेंट होती जितनी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। और आपको छोटे बच्चे नहीं हो, आप मेच्योर बच्चे हो, ग्रोन अप हो, आपको थोड़ा निकला सबका। यस सर। चलो लिखो फिर एक और। अब मैं थोड़ा सा गलती करने वाला दूंगा ना, सीधा सीधा नहीं ना दूंगा, ताकि आप थोड़ी सी गलती कर लो। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं देता, मैं थोड़ा ठीक ठीक ही दूंगा। चलो लिखो, मिक्स्ड इनकम 200, ओल्ड एज पेंशन 20, डिविडेंड्स 100, wages and salaries 500, operating surplus 900, employers contribution to social security schemes 50, profit 400, NFIA minus 10, depreciation 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी 50। आप निकालो नेशनल इनकम, NNPFC। सर NFIA कितना था? -10। बल्लू भी बोला आज। सर 2140। नहीं, कितना है? सर 21।
नहीं पुत्र नहीं। 1640। हाँ ठीक है बोलो। सर 1640। हाँ अशिता, डोमेस्टिक एनडीपीएफसी कितना निकला था? वन सिक्स फोर जीरो तो काके निकला ना नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कितना निकला था? सर 1650। ये प्रतिभा तू बोली थी। यस सर। देखो बेटा, आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा ना। उसने इस क्वेश्चन में आपसे गलती करवाने के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया और प्रॉफिट और डिविडेंड अलग से दे दिया आपको। अब कईयों ने उसको भी ले लिया होगा, जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला हुआ ही दिया हुआ क्वेश्चन में। यही मिस्टेक हो सकती है, और तो मेरे को कोई नजर नहीं आती। बाकी तो सीधा सीधे प्लस थे। ओल्ड एज पेंशन जो है वो तो ट्रांसफर पेमेंट है, वो तो अभी प्रिकॉशन में ही पढ़ा हमने कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यही दो एरिया थे जहां मिस्टेक हो सकती थी। बाकी तो मेरे को नहीं इतना कोई मिस्टेक वाला दिखाई दिया कोई इतना ज्यादा। $550 बनेगा कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, 900 बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स इनकम गिवन है 200। तो डोमेस्टिक इनकम आपकी आ जाएगी 1650। और डोमेस्टिक से अगर नेशनल में डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालनी पड़ती है, लेकिन वो वैल्यू है -10। तो हो गया ना 1640। क्योंकि प्लस करने पर वो -10 है। तो अरे अभी तो लिख के दिखाया। यही तो रहा, यही तो लिख के बताया, यही तो करना था। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज आपका 500 एक है और 50 एक है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ था, मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दी हुई थी। तो 1650 आ गया आपका डोमेस्टिक इनकम। फिर डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको NFIA प्लस करना था, लेकिन वो वैल्यू -10 थी। तो 1650 -10 1640 आ जाना था। इतना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये। लिखो क्वेश्चन, इसको करना प्रैक्टिस। आप इसकी आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं अभी इसको। प्रॉफिट 220, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रॉफिट 220 220। फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 350 इंटरेस्ट 100, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
50. Consumption of fixed capital 50. Opening stock 30. Subsidies 20. Closing stock 50. Mixed income of self-employed 150. Mixed income of self-employed 150. प्रणव तेरा ऑडियो ऑन है. Employers contribution to social security schemes. Employers contribution to social security schemes 30. Net factor income from abroad 10. Rent 80. और GST 90. So can you repeat? The whole thing. No, sir, the last item that you said. GST, goods and service tax 90. मैं फिर भी बोल देता हूं अगर किसी ने मिस किया. प्रॉफिट 220. कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज 350. इंटरेस्ट 100. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50. ओपनिंग स्टॉक 30. सब्सिडीज 20. क्लोजिंग स्टॉक 50. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 150. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 30. NFIA 10. Rent 80 and GST 90. Now you have to find out NDPFC, वो तो निकलेगा ही. Then you have to calculate GNPMP, gross national product at market price. सर NDPFC 900. नहीं वो निकाल के लाना ना अभी आप. मैं अभी इसलिए बताना है आप निकाल के लाना क्योंकि इसमें 4-5 बच्चे ही रिस्पांस देते हैं तो बाकियों को भी कुछ तो फूड फॉर थॉट तो दें. हम कुछ तो करें, कोई तो एक्टिव हो. ये तो नुकसान हो जाएगा. पर मेरे ख्याल से तुम इसकी कॉपी बना के इसका कुछ सिस्टम बना लो. नहीं तो ये बाद में रेफरेंस पॉइंट के काम तो करेंगे नहीं तो और 1-2 महीने के बाद फिर तुम दोबारा ब्लैंक हो जाओगे. क्या फायदा उसका. इसलिए इसको थोड़ा टच करना. 2-2, 4-4 क्वेश्चन सभी के करना. तभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक मेथड के हम कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लें और थोड़ा डिफरेंट करके. तो ये आपके हिस्से की ईमानदारी है, ये आपको ही रखनी है. अब यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन चेक और हम क्रॉस चेक कर सकें. लेकिन आपको थोड़ा ही तो ईमानदार बनना पड़ेगा ना कहीं. यू नो आप ऐसे लेट गो कैसे कर सकते हो हर एक चीज को. ये तो ऐसे भी ठीक नहीं है. चलो देखते हैं. मैं आई डोंट वांट टू रश. नहीं तो मैंने आज सोच के आया था कि मैं इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों करा दूंगा. पर ठीक है आराम से चलते हैं. कोई जल्दी नहीं है. अभी नवंबर स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो आप इस टाइम को थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी यूज करो तभी फायदा है इसका. ऐसे को फायदा नहीं बेटा. चलो बेटा टेक केयर. और जो पढ़ा है उसको एक रीडिंग पक्का मारा करो घर में. रोज जो भी हम पढ़ें टॉपिक उसकी एक रीडिंग पक्का मारा करो. बहुत फायदा करती है वो. आप बिलीव नहीं करते हो करके तो देखो. ठीक है बेटा प्रणव. थैंक यू बेटा. आप कोशिश करो ये बेनिफिट करेगा आपको. चलो पुत्र जी टेक केयर. Thank you, sir. बाय पुत्र. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय बेटा. बाय टेक केयर.